Shri Neeraj Manloi, ACS to HCM, Government of Madhya Pradesh. Yes, Consul General, Thailand. Once again, Madam, a very warm welcome. Thank you, Shri Raghavendra Kumar Singh, for felicitating all our dignitaries on the dais. Requesting you to take your seat. Well, ladies and gentlemen, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष मध्य प्रदेश उद्योग एवं रोजगार वर्ष मना रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये काम सफलतापूर्वक हो रहा है। वैसे भी मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावना है। इसी भौगोलिक स्थिति तथा इतिहास अपार संभावनाओं को जन्म देता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ से पूरे भारत में आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये पूरे देश के सड़क, रेल एवं वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर है। कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, हीरा तथा अन्य खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्राचीन काल में भी ग्वालियर, इंदौर, भोपाल जैसी रियासतें व्यापार और उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी। मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए भूमि, बिजली, कर सुविधा और अन्य सुविधाएं भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में है, एक खांडवा में और दूसरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री के शहर उज्जैन में। तो धार्मिक रूप से भी पूरे विश्व में उज्जैन मध्य प्रदेश आस्था का केंद्र है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक फिल्म दिखाना चाहते हैं, जिससे चीज़ों को समझना और आसान हो जाएगा। और इसी के बाद इसके बारे में और भी बातें हमारे सम्मानित श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions,
If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. When you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. वंदे मातरम। अनंत संभावनाओं से भरा हुआ मध्य प्रदेश और उन्हीं अनंत संभावनाओं को ज़मीन पे साकार करते हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री पवन कुमार रोहिया जी, श्री के अग्रवाल जी रूपा एंड कंपनी, श्री हर्ष अग्रवाल जी डायरेक्टर प्रताप ग्रुप, श्री बीबी अग्रवाल जी सीएमडी श्याम मेटेलिक्स, श्री नीरज मंडलोई सर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और ऊर्जा विभाग, श्री राजीव सिंह डायरेक्टर जनरल चैम्बर ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री योगेश गुप्ता जी पीओ के रीजनल चेयरमैन हैं, श्री चंद्रमौली शुक्ला जी मैनेजिंग डायरेक्टर एमपी आईडीसी और विशेष तौर पे पधारी हुई काउंसलेट जनरल थाईलैंड से मंचासीन हमारे सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आवश्यक होता है कॉन्फिडेंस की मैंने बात की कि विश्वास कैसे जगाया जाता है, मैं इसके बारे में केवल एक लाइन कहना चाहूँगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से मोटो रहा है कि जो हम कर सकें वही हमें कहना है। मैं कई जगह बोल चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर किसी चीज़ के पीछे पड़ के लगातार खुद मेहनत करते हैं। हम लोग भी उनके साथ एक टीम की तरह से लग के काम कर रहे हैं। न रुकना न थकना उनका ब्रह्म वाक्य है। पर जो सबसे बड़ी चीज़ कहना चाहता हूं कि पिछले साल एमएसएमई इकाइयों को और जो हमारे बड़े उद्योग की इकाइयाँ हैं इन सबको मिला के पिछले साल हम लोगों ने 5,100 करोड़ रुपए से अधिक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस का सपोर्ट दिया है। मध्य प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में, मेरे ख्याल से मैं औरों के बारे में नहीं कुछ बोलना चाहूँगा, पर वी आर वन अमंग्स दोज जो कि ये चाहते हैं कि जो हम कमिट कर रहे हैं वो करके दिखाएं आपको और इसी तरह से हम भरोसा जीत सकते हैं। तो ये काम करके मध्य प्रदेश ने दिखाया है। जीआईएस बेस्ड लैंड अलॉटमेंट सिस्टम है। आई कैन चैलेंज एनी वन अप ईयर, अगर आप चाहें तो आपको अगले आधे घंटे 1 घंटे में हम लैंड अलॉटमेंट की जो प्रोसीजर उसको कंप्लीट करके वो आपको लैंड हम आपको दे सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोजेक्शन, और मैं यहाँ प्योर इकोनॉमिक्स है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने से मध्य प्रदेश में आइए, बट अगर आप लैंड की बात करें, लेबर की बात करें, वाटर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड बात करें, तो इन सब में मध्य प्रदेश आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला है और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्रदेश आपको मिलेगा हमारे यहाँ। मध्य प्रदेश का जो लेबर डायनेमिक्स है उसके बारे में जरूर कहना चाहूँगा। वी वर द फर्स्ट स्टेट इन इंटायर कंट्री टू गो फॉर लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम। सो सारा कुछ कंप्यूटराइज और उसी के थ्रू ये काम होता है। 47% पॉपुलेशन हमारी वर्किंग एज कैटेगरी में है। नेग्लिजिबल जीरो मैन डेज लॉस की बात मैं कर चुका हूँ। वी हैव अ वेरी सेफ वर्क एनवायरमेंट। फीमेल वर्कर्स कैन वर्क 24/7 इन फैक्ट्रीज। और जो हमारी जो प्रोविजंस लेबर लॉज के बड़े कम्प्लेक्स और कठिन हुआ करते थे, पहले 16 रजिस्टर्स रखने होते थे, अब केवल एक सिंगल रजिस्टर की बात है और सारा सिस्टम हम लोगों ने ऑटोमेटेड और कंप्यूटराइज कर रखा है। मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश आपका विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सभी आपका विश्वास जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भारत का, जैसे कहते हैं कि मध्य प्रदेश इज हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय अद्भुत भारत का मध्य प्रदेश हृदय है। और चूंकि ये भारत का हृदय है इसलिए इसको बड़ा तो होना ही है। मध्य प्रदेश का दिल बहुत बड़ा है। आप आइए, आपका मध्य प्रदेश में
हृदय से ढेर सारा थैंक यू वेरी मच। तो ये तस्वीरें आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता पहुंचे हैं। उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी सीएम करेंगे और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में निवेश के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मित्रा पार्क की संभावनाएं प्रस्तुत होंगी। 18 नई निवेश नीतियों की जानकारी साझा की जाएगी। यानी मध्य प्रदेश जो निवेश को लेकर नीतियां तैयार की हैं, जो निवेश को लेकर, उद्योगों को लेकर अनुकूल माहौल तैयार किया गया है, उसको लेकर महत्वपूर्ण यहां पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। Have another round of applause for Shri Raghvendra Kumar Singh, IAS, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh. Now, ladies and gentlemen, it's time for experience sharing by industry representative. मैं पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर बीबी अग्रवाल, CMD श्याम मेटालिक्स। सर, आप आए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। I, Brijbhushan Agarwal, Chairman, Managing Director, Shyam Metallic, and Senior Vice President, Indian Chamber of Commerce, is pleased to welcome Honorable CM, Madhya Pradesh, Shri Mohanji Yadav, for taking his valuable time to come to Calcutta and share his value and thought about the investment in Madhya Pradesh. The government of Madhya Pradesh has identified several key sectors like textiles, garments, food processing, steel, mining, gems, jewelry, tourism, automotive, and information technology. There is also a very potential growth on the renewable front. As we all know, Madhya Pradesh has a very good solar heats, and there is a lot of potential on the efficiency side from the solar industry, wind industry, and lot of investment is coming up in Madhya Pradesh. In mining and mineral also, Madhya Pradesh is a very, very lucrative state. We have an office over there, and I have personally evaluated. There is lot of opportunity in all the minerals. We beat iron ore, we beat manganese, bauxite, and lot of rare earth minerals available in Madhya Pradesh. Related to the agriculture also, with 4,000 crores proposal in the food processing and massive land bank of more than 1 lakh crore, 1 lakh acre, the government aims to scale horticulture from 27 lakh hectare to 32 lakh hectare. तो यहां पर कोलकाता में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उद्योगपतियों से इंटरेक्शन हो रहा है। फिलहाल खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां भोपाल के बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में हो रहे अवैध कब्जे पर प्रशासन सख्त हो गया है और कार्रवाई की तैयारी में है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि तालाब की हद तय करने के लिए, यानी सीमा रेखा तय करने के लिए दोबारा सीमांकन किया जा रहा है। सीमांकन के दौरान अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे हटाया भी जाएगा। अभी भोज वेटलैंड और उसमें हमारा सीमांकन चल रहा है, टीम बनी हुई है और अगर सीमांकन में जो एरिया पाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। और नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच में भारत के हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिसमें छतरपुर के भी 4 परिवार नेपाल में फंसे हुए हैं, जिसमें बच्चों सहित 14 लोग शामिल हैं। छतरपुर के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगाई। नेपाल में लगातार हिंसा विद्रोह बढ़ता चला जा रहा है और फंसे हुए लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिला है। छतरपुर के 4 परिवार नेपाल हिंसा के बीच एक होटल में फंसे हुए हैं, जिसमें कोतवाली इलाके के गल्ला मंडी में रहने वाले व्यापारी, ट्रांसपोर्ट कारोबारी और कुशवाहा परिवार भी इसी ग्रुप के साथ मौजूद हैं, जो नेपाल के काठमांडू में फंस चुके हैं और अब लगातार डर सता रहा है। तो वहीं काठमांडू के होटल में फंसे छतरपुर के निर्देश अग्रवाल ने होटल की खिड़की से बाहर
हो रही हिंसा आगजनी का वीडियो बनाकर भेजा है। वो वीडियो क्या कुछ है वो आपको दिखाते हैं। काठमांडू के शहर में हूँ, जहाँ पर एक हिंसक आंदोलन चल रहा है बहुत तेज, और परसों से हम हमारे साथियों के साथ फंसे हुए हैं होटलों में, जहाँ पर अब यहाँ न कोई पुलिस सुरक्षित बची, ना ही कोई नेता और ना ही मंत्री। यहाँ पे आंदोलनकारियों ने यहाँ तक कि सेना के हथियार तक चुरा के लूट की है। और भोपाल से अपडेट, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता गरबा सेंटर पहुंचे, मुस्लिम ट्रेनर से गरबा सिखाए जाने का विरोध किया है। गरबा सेंटर में कार्यकर्ताओं ने रजिस्टर खंगाला, हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की है। भोपाल से अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां मुस्लिम ट्रेनर्स ने गरबा सिखाए जाने का विरोध किया गया है। भोपाल से लगातार ये मामला चर्चा में है, जहां गरबा सेंटर में कार्यकर्ताओं ने रजिस्टर खंगाला है और मुस्लिम ट्रेनर से गरबा की ट्रेनिंग लेने से मना किया है, आपत्ति जाहिर की है। हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी इसे लेकर की गई है और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता यहां पर गरबा सेंटर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें, जहां हिंदू संगठन लगातार सक्रिय है और मुस्लिम ट्रेनर ने से गरबा सिखाए जाने का विरोध इस बार किया जा रहा है, क्योंकि गरबा की शुरुआत होने वाली है। गरबा को लेकर महोत्सव का आयोजन होता है, गरबा किया जाता है, उसको पहले लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग को लेकर भी हिंदू संगठन ने सवाल खड़े किए हैं, कहा कि मुस्लिम ट्रेनर से ट्रेनिंग ना ली जाए, हिंदू ट्रेनर रहे, और गरबा में भी कोई गैर हिंदू व्यक्ति को पहुंचने को लेकर आपत्ति जाहिर की गई। और नेपाल के बाद अब फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन, कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों को मारपीट हुई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल के बाद फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं और कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में मारपीट भी हुई है। नेपाल में आपने तस्वीरें देखी, अब फ्रांस में भी हालात देखने को मिले हैं। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से शुरू किया गया प्रदर्शन पूरे देश में परिवहन व्यवस्था की अस्त व्यवस्था का पोष प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं और बोर्दों और मार्सिले में बवाल देखने को मिला है। जो बड़े शहर है, पेरिस में 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर आगजनी प्रदर्शन, यही तस्वीरें आपको नेपाल में दिखाई दी और अब फ्रांस में भी ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जहां पर धुएं के गुब्बार, सड़कों पर आगजनी, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बड़े शहर बताए गए हैं, इनमें बोर्दो और मार्सिले में बवाल देखने को मिला है। पेरिस में भी 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। और नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत के हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिसमें छतरपुर के भी 4 परिवार नेपाल में फंसे हैं, जिसमें बच्ची सहित 14 लोग शामिल हैं। छतरपुर के परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षित बाहर निकलवाने की गुहार लगाई है। नेपाल में लगातार हिंसा विद्रोह बढ़ता चला जा रहा है और फंसे हुए लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। छतरपुर के 4 परिवार नेपाल हिंसा में एक होटल में फंस गए हैं, जिसमें कोतवाली इलाके में गल्ला मंडी में रहने वाले व्यापारी, ट्रांसपोर्ट कारोबारी, एक कुशवाहा परिवार भी इस ग्रुप में मौजूद है, जो नेपाल के काठमांडू में फंस चुका है और अब लगातार डर के साये में है। और काठमांडू के होटल में फंसे छतरपुर के निर्देश अग्रवाल ने होटल की खिड़की से बाहर आकर एक हिंसा का और आगजनी का वीडियो बनाया है, जो वायरल हो रहा है। पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे, 4 फैमिलियां हम लोगों अपनी निजी गाड़ी से आए थे, लेकिन मोदी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को इंडिया वापस बुलवाया जाए। हम लोग यहाँ पे बहुत कष्ट में हैं। और ग्वालियर में 2 युवकों ने लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग करी है। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। युवक ने सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का वीडियो शेयर किया। हजीरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। होता है तो ग्वालियर से पूरा मामला, 2 युवकों ने हर्ष फायरिंग की है। राइफल से फायरिंग करते नजर आए युवक और एक युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। हजीरा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और जो राइफल है वो लाइसेंसी बताई जा रही है। और इंदौर में कांग्रेस नेता विशाल गोलू अग्निहोत्री की संपत्ति अटैच कर ली गई है। ईडी ने कांग्रेस नेता की संपत्ति अटैच करी, 6 अन्य लोगों की संपत्ति भी अटैच करी है। ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोप में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अटैच संपत्ति में फ्लैट, कृषि भूमि,
विदेशी घड़ियां शामिल हैं और ईडी ने दिसंबर 2024 में इंदौर में कांग्रेस नेता विशाल गोलू अग्निहोत्री की ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। और जबलपुर में डायल 112 की गाड़ी में खराबी आ गई। चंद दिनों पहले ही शहर पहुंची थी डायल 112 की गाड़ी। ओमती थाने को 2 FRV वाहन खराब हुए हैं और वर्कशॉप भेजे गए हैं दोनों वाहन। GPS इनेबल्ड सिस्टम के स्विचिंग में गड़बड़ी आई है और चंद दिनों पहले ही शहर में डायल 112 भेजी गई और अब ओमती थाने को 2 FRV वाहन खराब पाए गए हैं। तो जबलपुर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां डायल 112 के वाहन की खराबी देखने को मिली है और गाड़ी में खराबी आई है। चंद दिनों पहले ही शहर में डायल 112 भेजी गई थी और अब ओमती थाने में 2 वाहन खराब पाए गए हैं। और इंदौर से अगली खबर, जहां कांग्रेस नेता विशाल गोलू अग्निहोत्री की संपत्ति अटैच करी गई है। ईडी ने कांग्रेस नेता की संपत्ति अटैच करी है। ईडी ने कांग्रेस नेता और समेत 6 अन्य लोगों की संपत्ति को भी अटैच किया गया है। ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोप में कई कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अटैच संपत्ति में फ्लैट, कृषि भूमि सहित विदेशी गाड़ियां शामिल हैं। ईडी ने दिसंबर 2024 में इंदौर में कांग्रेस नेता विशाल गोलू अग्निहोत्री के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 6 अन्य लोगों की संपत्ति भी अटैच की गई है। इन संपत्तियों में महंगी महंगी घड़ियां, विदेशी घड़ियां बताई जा रही हैं, कृषि भूमि है, इसके अलावा फ्लैट भी है, विदेशी घड़ियां बताई गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी कार्रवाई से देखा जा रहा है। और जबलपुर में जॉली LLB 3 के गाने को चुनौती देने का मामला लगातार चर्चाओं में है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई है। हाईकोर्ट ने निर्माता निर्देशक को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है और हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई की बात कही और फिल्म के गाने भाई वकील है पर आपत्ति भी जाहिर की गई है। याचिका में फिल्म के जरिए न्यायपालिका और कानूनी पेशे को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। 19 सितंबर को जॉली LLB 3 रिलीज होना है। और ग्वालियर में हलवाई की हत्या का मामला, सीसीटीवी में मृतक और दोस्त साथ दिखाई दे रहे हैं। मृतक के साथ घूम रहे दोस्त पर पुलिस को हत्या का शक भी है और घटना वाली रात मृतक ने दोस्त के साथ चोरी करी थी। चोरी के बाद पैसों के लेन देन पर दोनों में विवाद हो गया और विवाद बढ़ने पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और विवाद बढ़ने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां हलवाई की हत्या का मामला है और सीसीटीवी कैमरे में मृतक और उसके दोस्त की तस्वीरें सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि घटना के दिन जो रात का समय चोरी की गई थी, दोनों दोस्तों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और चोरी के पैसों को आपस में बांटने को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद ही दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें अब सामने आई हैं। तो ग्वालियर से पूरा मामला बताया जा रहा है। मृतक के साथ घूम रहे दोस्त पर पुलिस ने हत्या का शक था और घटना वाली रात मृतक ने दोस्त के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी के बाद पैसों के लेन देन पर दोनों में विवाद हुआ। विवाद के बाद आशंकाएं हैं कि दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTP। नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उसे संवार रहे हैं। 25 वर्ष पहले अटल जी ने प्रदेश के आदिवासियों, किसानों, सर्वजन के हित को देखते हुए
जिस छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मात्र 20 महीनों में ही इस छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं विष्णु के सुशासन में पिछले 1.5 वर्षों की विकास गाथा। ये 1.5 साल में हमन छत्तीसगढ़ में विकास के काम ला करत हन। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रही साफ मन से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और बोला हमन मोदी की गारंटी नाम दे रहन। और मैं आप मला बताता हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। सब कलकत्ता और बंगाल आधुनिक समय के वर्तमान दौर में भारत के वर्तमान के 200 साल के स्वरूप में बदलते दौर की तस्वीर बनाने में सबसे बड़ी किसी शहर की भूमिका तो कलकत्ता की मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, बंगाल के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। ये बदलते दौर का समय और बदलते दौर के समय की कल्पना भी किसी ने की है तो वही बंगाल से ही हुई थी, और वो भी इतने निराशा के दौर में कभी कोई सोच नहीं सकता था। स्वामी विवेकानंद ने आज से लगभग 200 साल के आसपास उनने कल्पना कर ली कि 21 शताब्दी भारत की होगी। ये केवल कोई कर सकता तो बंगाल की माटी कर सकती है, ये काली मैया का आशीर्वाद हो सकता है, कोई नहीं सोच सकता ऐसा। एक नहीं, दो नहीं, कितने प्रकार के, सभी प्रकार के अलग अलग महापुरुषों ने अपनी अपनी भूमिका अदा की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1923 में जो ICS की टॉप एग्जाम पास करने के बाद भारत का गौरव दिलाते हैं कि हाँ, अंग्रेजों केवल आप ही बुद्धिमत्ता के मामले में दुनिया के सामने श्रेष्ठ नहीं हो, आपसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और एक तरफ पास भी करते हैं, दूसरी तरफ लात मार के युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि आइए हम सब अपने ज्ञान प्रतिभा का कौशल बताएं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा करें। वो दौर आज़ादी की लड़ाई का था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी उस एग्ज़ाम पास करने के बाद हमारे युवाओं का हिम्मत बढ़ाई, और उससे भी आगे बढ़ करके हम सब लगातार देखते जाएं, रविन्द्रनाथ टैगोर से लगा करके हमारे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ करके पहली बार राजनीतिक दल का रुख बनाते हुए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अगर कोई बने हैं तो डॉक्टर मुखर्जी की नगरी भी यही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नगरी, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि के आधार पर बंगाल के विभाजन के समय से कष्ट को पहचान लिया था कि बंगाल का विभाजन नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और उनकी भूमिका कितने प्रकार से हम देखते हैं। सबसे युवा कुलपति, और उस समय भी देश की आज़ादी के साथ उनने जो अपनी लड़ाई लड़ते हुए, एक अगर इंडस्ट्रियों की बात करें तो इंडस्ट्री मिनिस्टर तो थे वो हमारे बीच में, उनका अपना रोल, लेकिन उनने देश के विभाजन के साथ जो दूसरा कष्ट पहचाना कि एक विभाजन तो हुआ है अखंड भारत का, लेकिन उससे बड़ा कष्ट ये कि जो धारा 370 लगाई है, इस धारा 370 का भविष्य क्या होगा ये कोई युग दृष्टा ही जान सकता है। जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद पहली बार वो धारा 370 जब संविधान में जोड़ी गई तो उसका विरोध उस समय भी किया, और उस समय किया गया विरोध हमको बाद में लगा कि वाकई जिस धारा का उस समय मजाक बनाया गया था तो अस्थायी है, इससे क्या हो जाएगा, झूठी बात कर रो, परेशानी कर रो। पूरा देश सबसे ज्यादा किसी धारा के बलबूते पर रक्त रंजित हुआ है तो वह धारा 370 40,000 से ज्यादा लोग निरपराध मारे गए अपने उस केसर कैरी के उस राज्य के अंदर, जहां के माध्यम से पूरे देश की अलग पहचान बनती थी। वो अमरनाथ की वादियों वाला, केसर की क्यारियों वाला, झेलम और तमाम प्रकार की नदियों के माध्यम से अपने राज्य के आधार पर स्वर्ग से समान
जो उपमा पाता था। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को भी सार्थक करते हुए डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा दी गई चेतावनी के बलबूते पर उस धारा 370 के कलंक को हटाते हुए वर्तमान के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी का बदलते दौर में जिन्होंने अपने एक एक कदम से उस समय के उस निर्णय को दुनिया के सामने लाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने जो अपना योगदान दिया, और आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस कलंक से मुक्ति दिलाकर आज एक नए प्रकार का देश दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। और हमारे लिए तो और आनंद तो तब बढ़ जाता है जब आज दुनिया के उथल पुथल भरे देशों में विश्व के किसी भी मंच पर हम बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष को देख लें, लेकिन अगर मोदी नहीं है तो वो मंच अधूरा है। ये दौर भी हम देख रहे हैं, ये सौभाग्य की बात। ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरी रात में हजारों लाखों कितने ही तारे टिमटिमाए, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो एहसास होता है कि दिन का उदय हुआ है। हमको मालूम है हाथ मसलते बड़े बड़े देश कभी क्या कहते कभी क्या कहते, नींद भी नहीं आती रात में उनको कि ये क्या करें भारत का। ये बदलते दौर का भारत है जो स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसका एहसास हमको, और इसका एहसास हमको इस नाते से और बढ़ जाता है जब हम सब देखते हैं कि तुमको जो बोलना बोलो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे लोग बोलेंगे, हमारा अपना भारत बोलेगा। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के बलबूते पर बदलते दौर में भारत ने जो राह बनाई वो राह अपने आप में हमारे ऊर्जा से परिपूर्ण, हमारे भविष्य के विश्वास के प्रति आशावान और भविष्य में बड़ी छलांग के साथ दुनिया के अंदर नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने के लिए भी कृत संकल्पित है। इसलिए आज जब हम अपने राज्य के अंदर जाते हैं, मैं आज बंगाल की धरती पे भी आया हूँ, हमारे योग्य अफसरों ने अपनी बात सारी अच्छे से रख दी। और वैसे तो बंगाल के लोग सुन के थोड़ी समझते हैं, वो तो निगाह में पहचान लेते कि कहाँ दूर की कौड़ी है, कहाँ जाना है, किस स्थान तक जाना है, ये सारी इतना ही पर्याप्त। अपने आप में जो अपने अपने काम में दक्ष है उसको कहाँ जरूरत पड़ रही फालतू की। उन्होंने कहा ठीक है तुमको बोलो जो भाषण बोलना हो करना हो, बैठे बैठे उंगली पे सब जोड़ लेते हैं, हाँ कहाँ अपना किधर चलना चाहिए, हवा किधर बह रही है, कौन सी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं इस मामले में निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूँ, आज के दौर में बदलते समय की राजनीति भी बदली, और बदलते दौर की राजनीति में 14 के बाद से बदलता देश दुनिया देख रही है, जब सुव्यवस्थाओं की तरफ एक एक करके सभी सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ लेते हैं, पारदर्शिता भी आ रही है, सुशासन भी आ रहा है, विभिन्न प्रकार के सरकारों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय के साथ साथ देश की आर्थिक मजबूती की तरफ भी हम लेके जा रहे हैं। और अतीत के काल में वो सोने की चिड़िया वाला भारत का स्वर्णिम काल पुनर्स्थापित करने के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सारे हित सुरक्षित करते हुए, हमारे व्यवसायियों के भी सारे हित सुरक्षित करते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भारत तैयार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का, इस माध्यम से जिनने अपनी एक एक लड़ाई इस समूचे वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। और आज बदलते दौर में इसलिए हम अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उनके आशीर्वाद के बाद जब 2023 से हमारी सरकार बनी तो सरकार के माध्यम से हमने अपने सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लोक हितैषी नीतियां जो व्यापार परक भी है, व्यापारियों की सुविधा के लिए भी है, उद्योगपतियों को सरलता से सुगमता से व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति भी देती है और सुशासन की तरफ भी ले जाती है और आश्वस्त करती है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कभी कोई लेबर की हड़ताल नहीं होती, कभी सुना ही नहीं होगा मध्य प्रदेश में कोई हड़ताल होती। इतना सरलता के साथ व्यापार करने वाला कोई अगर राज्य है, मैं गारंटी से दे सकता हूँ मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए, आप तो बंगाल में बैठे रहिए, परिवार फैक्ट्री चलते रहेगी, कोई देखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से कंट्रोल कर लो। और देश के मध्य में ऐसा है कि आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलने वाला है।
जिनके माध्यम से काल के समय में बढ़ते हुए दौर के बीच अपनी सभी प्रकार की संभावनाओं के साथ आप अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में भी दे सकते हैं। पूरे देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी सरलता से मिलेगी। सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे कि पूछो मत। मौसम भी इतना अच्छा है, अंदर के वहाँ के प्राकृतिक वातावरण भी इतना अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में माइनिंग से लगाकर एग्रीकल्चर तक सभी प्रकार के सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है आज के समय में। तो हमारे इस पर्यटन से लगा करके स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, धार्मिक पर्यटन हो, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की बात करें तो होजियरियों का बगीचा है बंगाल। हमारे यहाँ का कॉटन सबसे शुद्ध और जैविक कॉटन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। इसीलिए अभी पीएम मित्रा पार्क का भी भूमि पूजन करने जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्लाट के तो पैसे नहीं ले रहे, हम खाली डेवलपमेंट के पैसे आपसे लेने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बिजली भी 4.5 रुपये यूनिट पूरे देश में सबसे सस्ती अगर कहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ मिलेगी, पानी की उपलब्धता के साथ। आप तो अंदाज लगाओ, ताली भी बजे तो ऐसी बजे, 2-4 बहन जी थोड़ी बजाओ, सभी बजाओ तो आनंद आएगा। जरा ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे बाप का मजा आ रहा है। नहीं, मेरी बहन जी इंदौर की है पर भाई जी बाहर के थोड़ी, वो भी हमारे ही हैं। हम तो जिया जी भी तो मानेंगे, जिया जी कहाँ जाने वाले हैं, हमारे साथ ही तो रहने वाले हैं। हम तो दोनों तरह की भूमिका वाले हैं। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये गंगा सागर का किनारा भी है और गंगा सागर में भागीरथ ने अपने कई पीढ़ियों के कष्ट के बाद अपने कुल को उतारने वाली जगह भी है। जब उनके जीवन काल में कहाँ से राजा सगर से लगाकर कितने प्रकार के सारे पूर्वजों के उस परंपरागत लंबे संघर्ष के बाद भागीरथ ने ईश्वर को भी प्रसन्न करके गंगा को स्वर्ग पे लिया है और स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो गई और गंगा सागर तक आई। हमारा भी मध्य प्रदेश का हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग ये गंगा वाले ही गंगा बेसिन से जुड़ा हुआ है। उज्जैन के हमारे पास में छिपरा जी हो, गंभीर हो, चंबल हो, ये सब निकल कर के एक दूसरी जाकर छिपरा निकल के गंभीर आती छिपरा में, छिपरा जाती चंबल में, चंबल जाती यमुना में और यमुना आती गंगा में और गंगा आती गंगा सागर में। तो आपका हमारा संबंध तो ऐसा है जिसके लिए वाकई में हमारी आपकी आत्मीयता बढ़ाने वाला है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका स्वागत भी करता हूँ और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते निमंत्रण भी देता हूँ। और जैसा कि हमारे सभी प्रकार की नीतियाँ, सभी प्रकार की योजनाएं, सब चीज़ें बता दी, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री होने के नाते हमने बहुत सारे विभागों में भी काम किया। लेकिन आज के बदलते दौर में अगर स्वदेशी के भाव को बढ़ाना है, अगर हमारे राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना है, तो मैंने अपने सभी विभागों के साथ सारे काम का बंटवारा अलग अलग मंत्रियों को जरूर किया है। लेकिन एक काम मेरे पास रखा है, राज्य का आपके क्षेत्र का मंत्री मैं ही हूँ, मुख्यमंत्री भी मैं हूँ और मंत्री भी मैं हूँ, ताकि उद्योग व्यापार व्यवसाय के साथ हमारे किसानों को उनकी फसल का ठीक दाम मिले, उनका ठीक प्रकार के प्रोसेसिंग हो और उसी के साथ साथ हम और आप मिलकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएं। तो मैं दो भूमिका में आपके बीच में हूँ, जिसको अपने मुहावरे में अगर कहें कि मामा का घर हो हमारे लिए और भोजन पे हम बैठे हैं और माँ परोसने आया तो डबल आनंद आ जाता हमारे लिए। एक तो मामा का घर का आनंद है और माँ के हाथ से परोसने का तो वो आनंद ही अलग हो जाता है। तो हमारे जो आनंद की डबल भूमिका में है, तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश आपके ही मामा का घर है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग ऑल आवर एस्टीम्ड गेस्ट फ्रॉम बंगाल एंड ऑल्सो फॉर इनवाइटिंग द पीपल ऑफ बंगाल टू मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री योगेश गुप्ता, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए।
हमारे प्रधानमंत्री के सपना विकसित भारत को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप जो ये कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश में वो बहुत ही सराहनीय है और मैं आपको इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए हमारे क्षेत्र में और हमको अपने देश की, अपने भूमि की जो एक अखंड भारत का एक हिस्सा है उसके बारे में बताया और सबको प्रोत्साहित किया। मंच पे बैठे मिस सिरिपोर्न तंतिपंथेप, कॉन्सल जनरल ऑफ थाईलैंड, श्री नीरज मंडलोई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, केशव बागर जी जो मेरे बगल में बैठे थे, चेयरमैन BFL कॉरपोरेशन, श्री पवन रुइया जी, रुइया ग्रुप, KB अग्रवाल जी, रूपा एंड कंपनी, श्री हर्ष अग्रवाल, डायरेक्टर प्रताप ग्रुप, श्री BB अग्रवाल, CMD श्याम मेटेलिक, श्री राजीव सिंह, डायरेक्टर जनरल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अदर डिग्निटरीज एंड गेस्ट, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में आके इस सभा को सम्मानित किया और हमारे मुख्यमंत्री को सुना, उनके जोश वाले बात को सुना और समझा और हम लोग सब आपको फिर दोबारा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so very much once again, sir, for the vote of thanks. With that, I would again like to thank our Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, for showcasing and telling us about the infinite opportunities where we can invest in Madhya Pradesh. And I would also like to thank all our dignitaries and esteemed guests on the dais for being a part of this summit. Thank you so very much once again. जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से हमारे डिग्निटरीज, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाए।